भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना ज़मीं ना कोई आसमां मिला। चलो आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, आज बची हुई जो एक बूंद भी लहू तो भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। हम सब जब यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर अनुशासन नहीं होता, अगर एकता नहीं होती, तो हम आज यहाँ इस तरह पढ़ नहीं रहे होते। इसलिए जो बैठे हैं बच्चे, वो अनुशासन का ध्यान रखेंगे। तालियों का बहुत स्वागत है और किसी भी तरह के शोर का स्वागत नहीं है। इसलिए आप हमेशा ताली बजाएं जब वो अच्छा बोले, पर ध्यान रखें। धन्यवाद। इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, आओ सबको गले लगाएं, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएं। First of all, I would like to thank all of you for being here and for being a part of celebration on this auspicious Day of Independence. It's really heartwarming to see all of you with us. कहते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी से कई बेहतर है कि हम आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो जाएं, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के हमारा ये जीवन एक तिनके के समान है। Heartfelt morning to Honorable Principal Sir, respected teachers, beloved senior, dear parents, and all my dear friends present over here. I am Sameer, and today we are proudly celebrating 78th independence of our nation. हम हिंदुस्तानियों के लिए 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, बल्कि यह दिन हमें एहसास कराता है कि इस देश के लिए भारत माता के ना जाने कितने सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और उन लाखों बलिदानों की कीमत पर ही हमें यह आज़ादी मिली है। तो आइए नमन करते हैं उन परमवीर शहीदों को और शुरुआत करते हैं आज का यह कार्यक्रम। Now I would request Honorable Principal Sir to please come on the stage and address us with his golden words. Please welcome him with a huge round of applause. I request Dal Sir to please escort Principal Sir. Very good morning to all of you. My respected parents, those who are present in this hall, and my dear colleagues,
and of course my very lovely students, those who are here in the campus, those who are here in the hall. Dear students, you all are known for your well-disciplined attitude and well-disciplined act. Here also, you are sitting very disciplined way and proper way. This is to understand, and this way you have to sit properly and enjoy this mega event which has been prepared by the students to celebrate this 78th Independence Day. I would like to extend my congratulations on this 78th Independence Day to all the present in here in this hall, my respected parents, my dear colleagues and lovely students. Whatever we are celebrating today is not the result of one day. This is the result of years of a struggle of our freedom fighters. Some of the freedom fighters we know that they were directly on the face, and there are many more who were behind the curtain we might not have seen ever. But their contribution can never be forgotten, can never be ignored. All the people of India at that time, those who contributed in the freedom struggle, not directly facing the bullets of the Britishers or the soldiers of Britishers, rather supporting those freedom fighters, those always came forward from the houses, from the lap of their mothers, from the embarrassment of their mothers, and they always came forward and fought for the freedom of the Indian citizen. Now we are free to breathe in free air. अभी हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे सांसों पर भी पाबंदियां थी, हमारे बोलने पर भी पाबंदियां थी, हमारी सभा करने पर भी पाबंदियां थी। वो पाबंदियां धीरे धीरे करके शायद इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और फिर धीरे धीरे करके जो अंग्रेज एक व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए थे, सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की, और सबसे पहला युद्ध उन्होंने पलासी का किया था, और बंगाल के नवाब, लखनऊ के नवाबों की जो सैनिक थे उनसे उन्होंने लड़ाई की, और एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने उस पर अपना आधिपत्य कायम किया, और धीरे धीरे करके 70-80 सालों के अंदर पूरे भारतवर्ष पर उनका कंट्रोल हो गया। और धीरे धीरे करके नॉट ओनली इन द फ्रीडम ऑफ द इंडियन सिटीजन बट ऑल्सो देयर रिलीजियस लिबर्टी वाज ऑल्सो एट स्टेक एट द टाइम। केवल हमारी स्वतंत्रता ही खतरे में नहीं थी, हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता थी, हमारी जो आज़ादी थी, वो सब धीरे धीरे करके खतरे में आ गए थे। और शायद यही कारण था सबसे पहला विद्रोह जो हुआ 1857 में, दैट रिवोल्ट वाज द रीजन ऑफ चैलेंजिंग द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडियन ओल्ड कल्चरल हेरिटेज एंड ऑल दैट। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ उसमें जो हमारे उस विद्रोह के जो अग्रणी, जो प्रखर, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सब जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और धीरे धीरे करके ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सबने सुना होगा, और हमारे बिहार के बाबू कुंवर सिंह का नाम भी सबने सुना होगा। बिहार की धरती वो धरती है जहां पर 80 वर्षों की बूढ़ी हड्डी में भी वो जान थी, वो हिम्मत थी, वो ताकत थी कि अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को परास्त करने में भी सफलता प्राप्त की। तो इस महान सपूतों के लिए ये दिन है कि हम उन्हें नमन करें, और ये सोचें, ये समझें कि आज जिस स्थिति में हम हैं वो स्थिति एक दिन की नहीं है। सैकड़ों सालों की सतत जो संघर्ष है उसका परिणाम है कि आज एक हम
स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं। वक्त वो भी था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने वो भी नारा दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। प्यारे बच्चों, आप इन स्लोगन्स के बारे में जब सुनेंगे, जब जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने अपने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। हमारे पास वो शक्तियां नहीं थी, लेकिन ये कहा जाता है कि उड़ान जो होता है वो शक्तियों से नहीं होता। यदि कहीं सफलता प्राप्त करनी है, कहीं ऊंची उड़ान हमें उड़ना है, तो हमें चाहिए हौसला, हमें चाहिए हिम्मत। और इसी हौसले और हिम्मत की वजह से उन अंग्रेजों के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के सामने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने युद्ध किया, संघर्ष किया और अंततः विजय भी प्राप्त की। इन छोटे छोटे स्लोगन्स को यदि हम देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सोचने में देखने में बहुत छोटा शब्द लगता है, छोटा लाइन लगता है, लेकिन उसकी भावना को यदि हम समझें, उस समय की जो भावना थी उसको यदि हम समझें, तो हमें समझ पाएंगे कि लोग कितने त्याग करने के प्रति उद्यत थे, समर्पित थे, कि अपना खून देने में भी किसी को कोई, यानी कि अपना खून देकर आजादी पाने के लिए भी किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी। और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने भी भारतवासी से, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सभी एकजुट होकर और इन अंग्रेजों से लोहा लिया था, संघर्ष किया था, और संघर्ष करके फिर धीरे धीरे हमें उस आजादी की तरफ ले गए, जो करीब 100 वर्षों का जो संघर्ष था, जो कठिन संघर्ष था, वो उसमें कई सारे पड़ाव भी आए, जिसमें 1917 में जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था, वो एक मील का पत्थर था उस स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी में, जो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा। क्योंकि वहां पर केवल सैनिक ही नहीं, किसान भी उस स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे उन शर्तों पर, जिन शर्तों पर अंग्रेज चाहते हैं। कहने को बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी जो होती है, वही पूरे स्वतंत्रता संग्राम को संचालित करती है, संवहित करती है। एक छोटी सी चिंगारी उठी थी 1857 में, और वो चिंगारी फैलते फैलते कई स्टेप्स, कई ऐसे मील के पत्थर आए, जहां पर सारे भारतवासियों ने मिलकर अंग्रेजों के सारे जो उनके कानून थे उनका विरोध किया, उनकी सत्ता का विरोध किया, और उस संघर्ष करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बच्चों, आपको पता होगा इस बिहार में, पटना में एक शहीद स्मारक है। कितनों ने देखा है उस शहीद स्मारक को? हाथ उठाइए जरा। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शहीद स्मारक पटना में कहां पर है? आपने यदि नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा। वो हमारे सेक्रेटेरिएट के अपोजिट साइड में है, जो 7 युवाओं की एक स्टैचू बनी हुई है। और 7 युवाओं के बारे में आपको जानना चाहिए। बिहार भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। एक नहीं, कई ऐसे नाम होंगे जो आपको जानने चाहिए, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम भूमिका निभाया जिन लोगों ने, और जिनकी वजह से भारत बहुत गर्वान्वित है। और उसके साथ साथ बिहार, जहां के हम वासी हैं, हम कुछ विशेष रूप से गर्वान्वित हैं ऐसे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। और जो मैं 7 युवाओं की बात कर रहा था, उनके पीछे की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। 1942 when क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, तो उस वक्त सारे जगह पर ये बहुत कड़ा संघर्ष चल रहा था। बिहार में भी संघर्ष चल रहा था। बिहार में भारत के झंडा को फहराने के लिए एक जगह निश्चित किया गया, लेकिन वहां पर फहराने नहीं दिया गया। तो इन 7 युवाओं ने, प्यारे बच्चों, आप जानिए 7 युवा, उसमें एक स्टैंडर्ड 9 का भी बच्चा था। सारे बच्चे जो थे वो कॉलेज स्कूल के बच्चे थे, कोई बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन उन 7 ने प्रण किया कि ठीक है, आप यहाँ झंडा फहराने नहीं देते हैं, हम सचिवालय में जाकर वहां झंडा फहराएंगे सबसे ऊपर। और वो लोग चल पड़े हाथों में तिरंगा लेकर झंडा फहराने के लिए। कहा? ये जो सचिवालय, जिसको पुराना सचिवालय कहते हैं, जब उस समय ब्रिटिशर्स का वहां शासन हुआ करता था, वहां के पदाधिकारी बैठते थे, शासन चलाते थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं वहां जाके झंडा फहराऊंगा।
और उन लोगों ने पूरी कोशिश की, वहां गए झंडा लेकर के, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स ओपन फायर ऑन देम और वो सातों वहीं पर शहीद हो गए। उन शहीदों के नमन में हमें जरूर याद रखना चाहिए कि उनकी जो वो त्याग है, उनका बलिदान है, वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसीलिए वो शहीद स्मारक बनाया गया है। जब भी आप कभी उधर से जाएं बच्चों, तो एक बार जरूर देखें कि वो भी छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े नहीं थे, कॉलेज स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन स्वतंत्रता की वो ज्वाला उनके अंदर थी, तो उन्होंने इसकी परवाह तक नहीं की। और वैसे वैसे न जाने कितने युवा होंगे जिन्होंने अपना बलिदान, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश की स्वतंत्रता की बलि वेदी पर। तब हम आज जाकर के आज बड़े स्वतंत्र रूप से, बड़े आराम से, बड़े ही स्वच्छंद वातावरण में जीते, अपना सांस ले सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम बोल सकते हैं, किसी के सामने अपना अभी तक अपना अभिप्राय हम प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, हम नहीं कर सकते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे करके हमारा देश आगे बढ़ा और आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे है, बहुत आगे है और पूरे विश्व पटल पर आज भारत की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है और एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में है। लेकिन इसको अग्रणी बनाए रखना, इसको और आगे बढ़ाए रखने की जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है और खास करके आप युवाओं, अब बच्चों के ऊपर तो बहुत ज्यादा है। इसलिए किसी भी चीज को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन होता है उस प्राप्त की हुई सम्मान को, उस प्राप्त की हुई चीज को बना के रखना, मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। स्वतंत्रता तो हमें मिल गई 1947 में और हमने ऊंचाइयां भी प्राप्त की, लेकिन अभी और ऊंचाइयां प्राप्त करनी है। तो जितनी भी हमारे अंदर जो इस चीज की हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी जो परिकल्पनाएं देश के प्रति, इस देश को आगे बढ़ाने के प्रति, हम सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है कि हम इस स्वतंत्रता को कायम रखें और इस स्वतंत्रता का सही अर्थ में सदुपयोग करें। स्वतंत्रता तो अच्छी बात होती है, लेकिन यदि हम इसको अत्यधिक स्वतंत्रता ले लें तो कई बार हमारे लिए ही मुसीबत हो जाती है। इसलिए स्वतंत्रता का सम्मान करें और अपने आप को उस स्वतंत्रता के प्रति समर्पित करें, उस स्वतंत्रता के प्रति उसके अभिप्राय को समझें और अपने आप को स्वतंत्रता को मानते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को साबित करें और आगे बढ़ें। पूरा देश आपके लिए है, स्वतंत्रता आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। इस स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
us that age is just a number for them. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए LKG के नन्हे छात्रों का फॉर देयर डांस परफॉर्मेंस ऑन द सॉन्ग लहरा दो जय हो। नैन से बड़ी कोई चीज नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। इसी जोश के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। तो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जिस उज्ज्वला वो याद कर ले। जिस्म में बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिस्म में बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। सुप्रभात परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभागारे शिक्षकगणाः एवं मम प्रिय सहपाठिनः च मम विनीत प्रणामः। अद्य अहं सत्यं झा नवम कक्षायाः छात्र भवतां सर्वेषां समक्षे भाषणेन सह उपस्थितोऽस्मि। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः स्वतन्त्रता दिवसस्य हार्दिकं शुभकामनाः। अद्य वयं सर्वे अस्माकं भारतदेशस्य 68 स्वतन्त्रता दिवसम् आचरामः। अस्माकं देशं 1947 वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रताम् अभवत्। अतः अयं दिवसं स्वतन्त्रता दिवसम्
कथ्यते। स्वतन्त्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया भवति, परन्तु स्वतन्त्रतायाः अर्थं केवलं राजनैतिक स्वराज्यं न, अपितु अस्माकं सांस्कृतिकं, आर्थिकं, सामाजिकं च स्वाधीनता अपि अस्ति। अस्माकं संस्कृतिः, परम्परा, मूल्या च अस्मान् प्रेरयन्ति यत् वयम् उच्चतमं गमिष्यामः। अद्यतनस्य स्थिते अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् स्वातन्त्र्यस्य रक्षां कुर्मः। शिक्षा, स्वच्छता, समानता, न्यायः इत्यादयः सर्वे अपि क्षेत्रेषु प्रगतिः करणीयाः। अतः एव वयं सर्वे भारतीयाः इमं दिवसं प्रतिवर्षं सोल्लासं समायोजयन्ति। कथितं च साहसे वसति जयश्रीः। अस्मिन् दिने राष्ट्रपतिः राष्ट्रं सम्बोधितवान्। अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे ध्वजारोहणं करोति। अनन्तरं प्रधानमन्त्री सर्वकारस्य कार्याणां योजनां प्रापणयन् जनेभ्यः शुभायं यच्छति। ततः सर्वेषां राज्यानां राजधानीषु मुख्यमन्त्रिणः ध्वजारोहणं कृत्वा जनेभ्यः शुभायं यच्छन्ति। तस्मिन् दिने भारतीय त्रिवर्णध्वजं सर्वत्र विराजते। अन्तिमे एकं श्लोकम् अस्ति। भारतं वर्तते मे परं सफलं, भारते नित्यमेव स्मरामि प्रियं, भारते में नास्ति जीवनं जीवनं, भारताय अर्पितं मे अखिलं चेष्टितं, भारताय अर्पितं मे अखिलं चेष्टितं। अर्थात भारत ही मेरा वह श्रेष्ठ आश्रय है जिसकी वजह से मेरी इस दुनिया में एक अलग पहचान है, और वह पहचान सिर्फ भारत की वजह से है। मेरा जीवन भारत में ही बसा हुआ है। भारत के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं, और आगे से जो भी मैं कर्तव्य करूंगा वो भारत को समर्पित होगा। धन्यवादम। जय हिंद, जय भारत। Here with us today with a special ghazal performance that will add a unique and melodious touch to our Independence Day celebration. शुभ अवसर पर आप सबों के समक्ष अमिक हमसे की लिखी हुई गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्तूर मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं के हर चंद मैं के हर चंद एक खानशी, मैं के हर चंद एक खानशी, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, दस्तूर मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा कहाँ वतन मेरा।
कश्ती मेरा नाम ये चमन मेरा मैं हवा वतन मेरा मैं के टूटा हुआ सितारा मैं के टूटा हुआ सितारा क्या बिगाड़े दुल्हन चुनन मेरा क्या बिगाड़े दुल्हन चुनन मेरा कश्ती मेरा ये चमन मैं हवा हर घड़ी हर घड़ी एक नया दरवाजा है हर घड़ी एक नया दरवाजा है दर्द सर बन गया बदन मेरा दर्द सर बन गया बदन मेरा कश्ती मेरा ये चमन मेरा मैं हवा मैं हवा Heart. आज के दिन को और भी यादगार बनाने के लिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं 8वीं और 7वीं की छात्राओं का फॉर देयर ग्रेट डांस परफॉर्मेंस। इंसानियत एक ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा
में और प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन में स्वतंत्रता दिवस सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यही वह दिन है जब भारत को 200 सालों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर देता है। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी, आजाद रहने का अधिकार। हमारे पूर्वजों ने अनगिनत संघर्षों के बाद ही हमें यह स्वतंत्रता दिवस का उपहार प्रदान कराया है, ताकि हम स्वतंत्र रूप से अपने देश के विकास और उन्नति में योगदान दे सके। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। यह दिन हमें अपने देश की महानता और साहस की याद दिलाता है। यह वही दिन है जब स्वतंत्रता संग्राम में कई परिवार बिखर गए, माताओं ने अपने पुत्र को खो दिया और बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। यह निराशा से भरा दिन था, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें गर्व है कि हमारे पास एक अमूल्य धरोहर है, हमारे देश की संस्कृति, भाषा और अमूल्य विरासत। हमें इसे संरक्षित रखना होगा और इसे विकसित करने के लिए अपना योगदान देना होगा। हमारे देश के महान सेनानियों और वीर देशभक्तों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने अपने प्राण के बलिदान के माध्यम से हमें यह स्वतंत्रता दिवस का उपहार प्रदान कराया है। उनके त्याग और समर्पण के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश की जिम्मेदारी भावना में अभिवृद्धि करने का संकल्प करना चाहिए। मैं भारतवर्ष की हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की सुनहरी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखती हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। ये आशिक कई पर वतन से हंसी शर्म नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। गणेश शरणं
दया कर श्री गणेश शरणं गजानन देव मुनिवर पणिहुं दया कर श्री गणेश शरणं गजानन देव मुनिवर पणिहुं दया कर श्री गणेश शरणं नागाभरणने नामरे कोचुं नागाभरणने नामरे कोचुं नागाभरणने नामरे कोचुं नामने प्रणव रूपने नागाभरणने नामरे कोचुं नामने प्रणव रूपने नागाभरणने नामरे कोचुं नामने प्रणव रूपने श्री गणेश शरणं गजानन देव मुनिवर पणिहुं दया कर श्री गणेश शरणं शरणं Harish Mark's Bharatanatyam performance was encapsulating this dance form. Moving on to the next performance. Now let's welcome our junior group for their group song Ye Salamat Rahe, written by Janishar Akhtar. Thank you.
welcome him. Please welcome her with a huge round of applause. As I stand before you, I feel it is pride and honor. I'm Lata Shankar from class 7th A, and I am here to share my thoughts on the momentous occasion, the 78th Independence Day of our beloved nation. Our history is broad with thread of courage, sacrifice, and unwavering determination. Our freedom fighters, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, and countless others fought relentlessly for a dream of a free India. They faced adversity, imprisonment, and even laid down their lives so that we could breathe the air of independence. For nearly 200 years, India was under British colonial rule. The struggle for independence was long and difficult, marked by numerous movements, protests, or revolts. The First World War for independence in 1857 to the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, and the Quit India movement. Our ancestors, we have a critical role to play. Our classrooms are the laboratory of our learning. We respect our teachers and contribute positively to the society. Remember, every small act counts as mine, a helping hand or planting a sapling. Close your eyes and imagine an India where every child has access to quality education, where clean rivers flow, and where technology bridges gap. Let us dream of an India where poverty is eradicated and healthcare reaches every corner. We are the architects of this dream. Let us build it together. In the world of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high, let us march forward with courage, compassion, and conviction. Let us honor our past, celebrate our present, and shape our future. Thank you for listening me. Her speech was a powerful reminder of the values that make our nation great. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर, तो तालियों के साथ स्वागत करिए क्लास 8 के वंश मिश्रा का विद हिज मेलोडियस वॉइस. चल रहा है एवं यहाँ पे सभी बैठे लोगों को मेरा प्रणाम. मैं वंश मिश्रा शाह 8वीं ई का छात्र आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत लेके प्रस्तुत हूँ. मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा. जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा. देखो भी जवानों अपने खून पे ये इल्जाम लाए. देखो भी जवानों अपने खून पे ये इल्जाम लाए. माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम लाए. देखो भी जवानों
मुस्लिम सिख ईसाई हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम लाए। देखो जवानों अपने खून पे इल्जाम लाए। देखो वीर जवानों मैं भी दुश्मन की कोई जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उसमें मेरा नाम लाए। धन्यवाद। जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि
That was indeed a display of talent and coordination. Truly, this outstanding performance has left us all mesmerized. Hope जाए देशभक्ति का यह जोश कभी ना घट जाए। Jhijia is a cultural folk dance of Mithila. The dance is performed to offer devotion.
Really mesmerizing and gorgeous performance by Shreya and team. Their adorable moves and expression has really ignited Indian culture and tradition. Thank you so much for creating such a beautiful aura around us. तू शहीद हुआ है वतन के नाम पर, तेरी कुर्बानी से बढ़कर कोई नाम नहीं। तेरी मिट्टी में बसती है जान हमारी, तेरे बिना हमारी कोई पहचान नहीं। Now please welcome Shreshi with a huge round of applause. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की पानी में रंगोली साथ रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की पानी में रंगोली साथ रंग। पानी बदली पहले मौसम है, मेरे चादर तारे अंबर है, नदी सुनहरी वाला समंदर है। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस। This song is the perfect example of strength and unity our nation holds. Thank you, Shreshi, for your beautiful dance. But वाओ, आज चंद्र की घड़ी के तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की
के बाण पे उतार दो, भारत है प्रचंड। प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाग जंग की घड़ी की धूप हार दो। और पान शान या की जान का उड़ान, भाग ले धनुष के बाण पे उतार दो। Such a mesmerizing performance. Happy Independence Day. It is celebrated on 15th August every year. It is very important day for us. We got from freedom on 15th August 1947 from the British rule. On this day we remember and recall our great freedom fighters. We pay our gratitude towards them. I am proud to be Indian. I love and respect my country. Thank you. Very good, very good. Today, our program has come to a logical conclusion, and now it is time to propose customary vote of thanks at the end of this program, which we are conducting at the occasion of 78th Independence Day. It's a very special day for us because on this date we pay tribute to our martyrs who laid their life for our independence. First of all, I would like to express my gratitude to our principal sir and madam. Principal sir for his dynamic stewardship under whose guidance, within a very short span of time, our children, under the mentorship of talented teachers, performing so well at the stage, flawless performance, and they deserve all praise. And our principal sir is very much credit goes to him for this. So far as this cultural program is concerned, I am speechless. Each and every program, one after another. Each and every program was mind-blowing, stupendous. I have no word. This time we won't be able to find any flaw in the performance of any child. So it was wonderful program. From classical dance, this time classical dance performed by the little girl, it was really very, very mesmerizing. It really stole the show, and energetic songs, energetic dances and songs, all were wonderful. So no words to say anything else other than this, that they were mesmerizing and they completely left us speechless. Our team, all the team who worked for the
preparation of these programs, they work very hard and they deserve all praise. These anchors standing here, they also performed very well, effortlessly, and they deserve all praise for this. Our child, one who spoke, who delivered a speech in Sanskrit, and the day before yesterday, we heard this child reciting one Shiv Tandava. That was also excellent. His intonation, his pronunciation, everything was excellent. I feel that in such children's hand, in such generation, our culture is very safe and it will definitely prosper. We should not be very disheartened. Very good boy. God bless you. All the staff members who worked before and behind the veil, they also deserve appreciation and praise, because without their work, their cooperation, nothing can be presented and done, because they are the lifeline of our school. They are behind every action which is done in this school. We appreciate the patience with which everyone has worked. The folk dance presented by a team of girls, guided by, mentored by Madam Anu, if I am not wrong, that was also very nice, very nice. And Ranveer sir, he is as always excellent. So what to say? Nothing to say. I feel that in the generation which are so patriotic, so loyal to their nation, in their hand our nation is very safe and sound. We need not worry about the future, and thank you once again. I won't take much of your time because everyone is worried of too much of entertainment. So that's all for today. I wish that let's walk together, and two lines from Rigved. Sangachadvam samvadadvam samvod banansi janatam. Namaskar. Thank you once again to all. May God bless us all, because we can't, if we forget to bow before the Almighty at such occasion, it won't be fair on our part. So I bow before Almighty for the blessings He must shower upon us as always. Thank you. Thank you.